Good morning, sir, and everyone else present here. Thank you for joining us on this Sunday morning. I'll just quickly introduce my team members. We are Group 6. We are mentored by Ms. Komal Amle ma'am. Our group members are Hello. Pranita Rahul, Sakshi Mutha, Janvi Joshi, and myself, Anuradha Gopal. I hope we worked a little bit in understanding for ourselves about green buildings, and we'd like to share what we've learned. And I hope we really get comments from experts from their view, so we'd use them in implementing our own designs. We all been hearing a lot about green building, sustainable architecture. So this is our attempt to explain this in the shortest way possible. What we felt is ideal. So sustainable development and green buildings are often used interchangeably. The practice of creating structures using processes that are environmentally responsible and resource efficient. So, to elaborate a little bit on this point, it's important to know that the resources that we're using nowadays, we are relying heavily on renewable resources, and it's important to know that they are very limited, and we need to use them sparingly. We need to use them efficiently. So, instead of heavily relying on them the way we are, sustainable building or green building is a way to explore how we can rely more on the naturally available resources or non-renewable resources which we have in abundance, and how to harness them, like in ways of using passive strategies to for ventilation purposes, or daylighting systems, or even if there are ways to find how we can conserve more water so we can use less water. As we know, we have very less percentage of fresh water available on the earth. So these um, systems can be used throughout the building's life cycle. They should be economically viable. They should have good utility. They should have good durability and should definitely provide comfort, since these are going to be habitable spaces. So, what is sustainable architecture? Optimum utilization of resources and increases the efficiency of resource utilization. So, as I was saying, that it's important to know that what we have is very little, and we cannot rely on them forever. And also, using fossil fuels, the consequences are such that they add back to the CO2 or the carbon footprint. So they do have um, consequences or negative effects of using them. So there are definitely more benefits harnessing the natural resources that we have, or non-renewable resources that we have. What is sustainability? Meeting the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their needs. So we have our fossil fuels very limited. So it's important to know that we are not the only habitants that are going to be in need of these resources, and we need to know that future generations should also be catered to these needs. So moving on, why sustainable practices are so important in the present. So we are aware of the changing climatic conditions and how we are way way um, into our path of being destructive to the environment, that no, maybe the change cannot be reversible, but there are ways to delay the impacts. And as we are aware, in 2015 there was a Paris Climate Act that was signed, and they have developed 17 sustainable development goals, out of which 11 is something we are concerned with, about building sustainable communities. So by the goal is that by 2030 we achieve a good climatic condition for the for entire of the earth, that whatever is the situation now, it can be at least delayed to certain extent, and maybe the damages aren't that bad. So buildings have a tremendous impact on the environment. From the environmental impact perspective, a building sector uses all these points. They use natural resources, electricity, potable water, waste disposal in landfills, greenhouse emission, material exploitation and transportation, raw stone, gravel, sand, and raw timber. So these are some components. There are many benefits adopting sustainable architecture. They are facilitating collaborative connections, decreased absenteeism,
cycle to cycle trip facilities, environmentally certified materials, improved indoor air quality, lower embedded carbon, promising alternative transport options, increased productivity, energy efficiency. So this is a very holistic approach, not just pertaining to sustainability, but just a sustainable life in general. So the objectives of a sustainable building are resource conservation. As I was saying, we cannot always rely on non-renewable resources. We have to turn to more abundantly available renewable sources. Cost efficiency. Since we are reducing cost on fossil fuels or the way to process it, um, we are reducing cost efficiency on that. And since we're relying more on natural resources on this, there's no need to counterbalance it. Like, we don't have to rely on conditioning loads when we are relying on natural uh, available sources to rely on that. Design for human adaptation, protecting physical resources, design for fire hazard, natural hazard, and crime prevention, protecting human health and comfort, thermal acoustic, daylight, natural ventilation, and functionality. Some of the strategies using which we can cover this are energy, material, water, and land conservation, initial cost, cost in use, recovery cost, protecting human health and comfort, and protecting physical resources. So, a little bit about the manufacturing process. It reduces production of waste. It enables recycling. There's more encouragement to use natural material. There's again more choices to use locally available materials, since it will suit the climate of the place, and pollution prevention. So this directly has a consequence on the building operation, and that would be energy efficient, non-toxic environment, water treatment and conservation, and a longer life of the building itself. And also on the waste management, it's important to know that we need to segregate waste as well. As designers, we should also provide needs and facilities for that. The waste management should be done in a way that it's done systematically, so everything is separated into biodegradable waste, recyclable waste, and which can be probably even reused after recycling. We'd like to move on with the materials. Sakshi, could you please take over? Yes. So let's start to know a little bit about the materials. Let's start with bamboo. It is a very popular flooring material used nowadays. It is available in a variety of styles and colors also. It is a fast growing grass, so it is easily available in the market. Let's take a look at straw bale. It is used in its raw state, unlike the recycled materials, and it is quite affordable. It has low impact, low carbon building material. Grasscrete is another material which is known as sustainable urban drainage. It is an alternative to concrete surfaces for parking lots, driveways, and etc. It increases stormwater absorption. Also, it is a natural biofilter to remove pollutants. Next, hempcrete. It provides natural airtight, breathable, and flexible insulation. It is mold-free and pest-resistant, as well as it is fireproof. Amazing. It's amazing to know recycled plastic is the most efficient material used over entire life cycle. The lifespan of plastic applications is up to 30 to 50 years. Isn't it amazing? Yes. Next, let's go to rammed earth. It has low manufacturing impacts. Some of its advantages are superior thermal mass, temperature and noise control, strength and durability, low maintenance, fireproofing, load bearing, and pest deterrence. It is great in aesthetics as well due to its natural color. Mycelium. It is a concrete capable of organic self-healing. It reduces need for high price repairs. It is eco-friendly insulation. It is an eco-friendly insulation material, as well as
it major controls for biomass green building. Next, let's go to Ferroc. Ferroc is a carbon negative cement material which is stronger and greener. It is long lasting and it has no maintenance or repairs. Let's take last one as timbercrete. It is a combination between timber waste and concrete. It is lighter than solid concrete. It has a greater strength and insulation capabilities. At the end, it provides unique thermal qualities. So I hope you guys got a short glimpse about the materials. Great. Let's start next. Comparison of green building and conventional building. Convention building were built using non-energy saving techniques. That does not mean they are unable to have energy saving improvements made to them. Green buildings both increase building energy efficiency by using Energy Star appliances and improve the design of building. A green building is one which use less water, optimize energy efficiency, conserve natural resources, generate less water, and provide healthier spaces for occupants. Yes. As compared to conventional building. So conventional building and green building, external appearances both look alike. Building use both are same. Differences between two, operational savings from day one, conserve natural resources, human comfort, productivity, and indoor environment. Next. So the components of green building are they are energy efficiency and renewable energy. They are water efficiency, environmentally preferable building materials and specification. In green building, waste reduction, toxic reduction, indoor air quality, smart growth, and sustainable development. There are 5 principles of green building. They are livable communities, energy efficiency, indoor air quality, resource consumption, and water consumption. So there are some facts about green building that I'm telling now. It only cost 3 to 5% more than conventional building to construct. They reduce energy use by 30 to 50%. It reduces CO2 emission by 35%. It reduces waste output by 70%, and it reduces water uses by 40%. Next. So there are some disadvantages of green building also. The initial building cost is second, green construction materials are not always available. Green building can be more complex than normal buildings. Expensive materials are be used in green building. Time consuming to build, and some of green materials are not really green. You will need to the research to ensure that you're truly making an impact. So so there are some benefits of green building. Most effective means to achieve a range of global goals by addressing climate change, creating sustainable communities, and economic growth. So first benefit is better environment. Inherently designed to make a best use of natural resources, more friendly to environment. Then cost effective design. Green building cost less compared to normal building because less use of energy water, and it increase value property. Then social benefits. They are very good for health of entire ecosystem that occupies, decrease the load of a local infrastructure. So then lower life cycle cost, better health and productivity, and enhance building marketability. So thank you. Next. There are
different materials of a convention building and green building. In green building, we use insulation material for wool and wool fire. And in convention building, we use insulation for foam board and thermal wrap. So same as structural, we use in green building straw bale, stone, timber frame. And in structural, we use brick, concrete, metal. And for flooring, we use in green building bamboo, corkwood, hardwood, stone. And for convention building, we use concrete, wood, laminate, tile, etc. So next is Anuradha. Now I'd like to explain about the green rating system. There are currently 2 rating systems being used: LEED, or Leadership in Energy and Environmental Design, and GRIHA, which our expert has also been working in, or Green Rating for Integrated Habitat Assessment. A little bit about the word Griha. It is a Sanskrit word meaning abode or dwelling. The Griha promotes passive techniques to reduce energy cost while keeping the optimal thermal comfort inside the building. A built environment. Griha rating system takes into account the provisions of the NBC, or the National Building Codes of 2005, the Energy Conservation Building Code 2007 announced by BEE, and other Indian standard codes. A little bit about the rating system. So each building or each project is awarded a certain number of points for any sort of initiative that they've taken. So it could be based on site planning, health and well-being. It could be based on the type of building materials they've chosen, or building planning, the way they've implemented the construction in stages as well, and also the waste management that they intend to follow. So they have certain points allotted to them, and based on those, the summation of all the points, they get stars based on that. So if you get 50 to 60 points, you're awarded a 1-star rating. 61 to 70, a 2-star rating. 71 to 80, 3 stars. 81 to 90, 4 stars. And 91 to 100, a 5-star rating. I'd like to explain a case study that we have chosen, which is a 5-star rated project. This is ITC Residence Park, and its location is in Guntur, or Andhra Pradesh. The climate of Guntur is above average hot, and I think it was important to use these techniques, especially here, to help with the cooling or the ventilation. So the site area of this project was 44,500. It's a residential project. The energy consumption is reduced to 56.7% as compared to the benchmark laid by Griha. The energy performance index of this project is 44.18 kilowatts per hour per meter square per year. They have installed renewable energy sources on the site itself. They have a solar photovoltaics installed on site, and they have a 5-star rating, and they just completed the project recently. So they were, as I was mentioning, they were awarded points based on these aspects. I'll just add a little more about the project. So as you can see in the picture, they have a recessed balcony facade, which helps in a proper flow which helps with proper flow for the wind. It produces very low carbon footprint, and it saves immensely on water and energy. It really makes a benchmark for other sustainable housing. So about the strategies that they have adopted, about the sustainable site planning, 63.9% of the site is shaded by trees, and instead of providing normal paving, they have provided pervious paving, which helps in the groundwater recharge. They have vegetated roof, which helps keeping the inner surface of the house cool, and the roofs, the other roofs which are not vegetated, they are coated with SRI coating or solar reflective index coating. About the air pollution, so they have used these sort of barricades on the site, so the air pollution sort of remains contained. Since the particles are dense and they can't fly high, they'll hit against this barricade and they will not cross it.
So they have these high barricades. They also used air sprinklers on site, which helps to again keep turn them into water state, and they come back. I mean, they don't fly away from the site. Regarding the water management, they have achieved a 51.04% less water demand as compared to normal by installing water efficient fixtures. They have reduced the use of water for landscape by 48.6%. During the construction, for curing purposes, they used Haitian cloth for curing of columns and other building members. Haitian cloth is a material that has very is a very dense texture, and it holds on to water for longer, thus reducing the water holding increasing the water holding capacity, and thus reducing the water content required for curing overall. About the energy optimization and occupant comfort, the planning is done in such a way that there is very less dependency on the fossil fuels for the lighting necessities. So they have arranged the spaces in a way that the most of the spaces are lit for throughout the day. So only during the non-sun hours or evening hours or night hours is when they need to use lights or any sort of illuminating devices. They've also integrated high energy performing systems, which has reduced the EPI by or the energy performance index by 55.32%. About the renewable energy used on this renewable energy installed on site, these technologies are used exclusively for the project. So they've installed solar photovoltaic system, and they also have wind energy production on the site itself. Regarding the sustainable materials they have used PPC or Portland Pozzolana cement, which has a very less or a reduced heat of hydration percentage. So it adds to the CO2, the carbon footprint, or the heat much lower. They also have used fly ash content by weight, which is used for the plastering and the masonry mortar. They've used vitrified tiles in the project, which are made from recycled tiles. So there's no waste actually going to waste. They've recycled the waste which would have been thrown away. About the waste management system, they have implemented a proper waste segregation so that it adds to the city as well, and they've even thought about it on a city level, so the city has a good waste management system. So this is about the project, and thank you for your kind attention. Wow, great. Can you all have a huge hands raise of appreciation for this wonderful session by group 6. Really commendable efforts. Everyone, can we all have a huge hands raise of appreciation? And we'd like to start, sir, with your comments, please. You may please scroll down, scroll up your PPT again on slide 1 or 2. Sir, your comments, please. Yes. Thank you all of you for. It's a great day today. To early morning, and everything is great. Great. One more thing. See, your effort is too good, perfect. But only one thing now, I'm opposed of you. What? You're telling me that you told me about advantages and disadvantages. So green building have. You can come to that slide, Anuradha. Yes, please. Yes. That 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points are you have to cancel it out. No disadvantages for green building. That's why it is green. Understand? See, the initial cost. Initial cost, building cost is you say high. अभी आपने जो project देखा था ITC का, that building is look like same like our building, isn't it? Yes. Yes, their walling and plastering, everything is as per this. You are living there, but everything is same. So you are going. You are what you can say ki, doing something for green building, doing something Yes. for your environment. That is the main spirit.
बराबर है। क्योंकि ये आपको कभी सोचना नहीं है कि ये गलत नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज डोंट टेक इट नेगेटिव, बिकॉज क्या है कि एक्चुअली है ना, देखो ये डिसएडवांटेज आपने बोला, वो इम्पैक्ट क्या होगा। सपोज अगर ये पीपीटी आपने कोई बिल्डर को प्रेजेंट की, आप इमेजिन करो कि मैं बिल्डर हूँ और आप आर्किटेक्ट हो, बराबर, तो ये मैं क्या देखूंगा पहले मालूम है, एडवांटेज तो बाद में देखूंगा, मैं पहले क्या देखता हूँ मालूम है, पहले डिसएडवांटेज ही देखूंगा। इज इट राइट? Yes, sir. एज अ क्लाइंट, बराबर। अभी आप सोचो कि अगर डिसएडवांटेज आप बताएंगे, बराबर, इतना कॉस्ट ज्यादा है तो फिर मैं क्यों जाने का है, फिर आप बोले ठीक है सर आपको नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल करो, This तो is फिर what आपकी मेहनत happens. वेस्ट है कि नहीं? This is what हाँ, दिस happens. इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड। तो कभी भी आपको नहीं बोलना, क्योंकि मे बी ग्रीन बिल्डिंग मेरे कंपनी में लाने के लिए ना मेरे को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े थे, बराबर। तो ये यही होता था, और ये जब मैंने प्रूव कर दिया कि ये ग्रीन बिल्डिंग आपको थोड़ा भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है, नॉट अ सिंगल रूपी, बराबर, 1 रुपया भी आपका एक्स्ट्रा जाता नहीं है, तो आपको करने में क्या दिक्कत है? तभी जाके अभी हमारे सब प्रोडक्ट ग्रीन है। सो डिसएडवांटेज है ना उसके होते ही नहीं, क्योंकि जैसे नॉर्मल बिल्डिंग है वैसे ही है, खाली आपको क्या करना है, उसके सब जो मैंडेटरी पॉइंट्स है वो फॉलो करने हैं, बराबर। आई एम मतलब लुकिंग फॉरवर्ड इन गृहा, क्योंकि दोनों सेम ही है, गृहा इज मच मोर टफर दैन एवरीबॉडी। सब लोग सॉफ्ट है, आईजीबीसी सॉफ्ट है, लीड सॉफ्ट है, लेकिन बेसिक क्या होता है मालूम है, आईजीबीसी लीड का जो उनका ये कॉन्सेंट्स है ना, दे आर नॉट एज पर अवर इंडिया, वो सब अमेरिकन स्टैंडर्ड पे चलती है, बराबर। लेकिन जो गृहा है ना, दैट इज ओनली वर्क इन इंडियन स्टैंडर्ड्स। सो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन बिल्डिंग का जो कॉस्ट है उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आप नॉर्मल ब्रिक वर्क करते हो, हाँ ब्रिक वर्क आप नॉर्मली करते हो, तो इंस्टेड ऑफ ब्रिक वर्क व्हाट यू यूजिंग, यू नेवर यूज बाम्बू ना फॉर बिल्डिंग, बट यू कैन यूज AAC ब्लॉक्स। इज इट राइट? You Yes, know sir. AAC blocks, autoclarated concrete, पता है ना आपको? Yes, sir. Yes. So AAC ब्लॉक वापरते हो, AAC ब्लॉक आपको महंगा जाता है, बराबर, वो महंगा जाता है आपको, लेकिन कैसे महंगा जाएगा? कॉस्ट वाइज महंगा जाएगा, बट अगर वो लाइट वेट है, यस, आप बताना Yes, मेरे को, लाइट वेट है, लाइट वेट है तो उसका इफेक्ट मेरे को कहाँ पे होगा? टेल मी। sir. Loading काफी कम होगा. लोडिंग कम होगा, लोडिंग कम होगा तो क्या कम होगा? आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन लाइट होगा। Yes, sir. यस, और सबसे महंगा आइटम क्या है सिविल इंडस्ट्री में? स्टील। Steel, yes. स्टील, आप वो स्टील ही रिड्यूस कर रहे हैं ना, बाय यूजिंग दैट AAC Yes, ब्लॉक यू रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ स्टील वेरी मच, आप उसको लोड पूरा कम करोगे। आपको पता है इसका डेंसिटी कितना है AAC ब्लॉक का? एनी आइडिया? No, sir. नो प्रॉब्लम। सी उसका जो डेंसिटी है ना 550 to 650 kg पर m क्यूब है। कितना है? 550 to 650 kg पर m क्यूब है। और जो नॉर्मल आप ब्रिक यूज करते हो, ब्रिक विथ दैट मॉर्टर, इट गोज टू 2000 kg पर m क्यूब। कितना डिफरेंस है? मार्जिनल डिफरेंस है कि बहुत नहीं, बड़ा डिफरेंस है? बहुत बड़ा difference. बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, कितना? ऑलमोस्ट 1/3, 2/3, Yes, 2/3. 2/3, बराबर। मतलब अगर आप इमेजिन करो कि मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, इतना लोड कम नहीं होगा, लेकिन आप जो ब्रिकवर्क का लोड कंसिडर करते हो तो डेफिनेटली वो आप 2/3 लोड कम कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ब्लॉक। Sir, yes, sir. I have a question. So, can it completely substitute bricks even in some, say, You a have 10? to red bricks. You have to completely reduce red brick, not single brick. Because what happened for the brick now, you have to dug your mountain na to get that clay, मट्टी, बराबर। For what happened, आपने रेनवाल मिट्टी तोड़ दिया पूरा, पहाड़ आप तोड़ेंगे, खोदेंगे, तभी मट्टी निकलेगी, उसके बाद ब्रिक बनेगा, तो आपने सेव नहीं किया ना एनवायरमेंट को। So for Yes, saving sir. that, you won't use that red brick at all. वो सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका ग्रीन बिल्डिंग के लिए। और ये आपको क्या लगता है कि ये लोग कैसे बोलते हैं आपको कि ब्रिक तो 8 रुपए की आती है, ये ब्लॉक तो आपको 50 रुपीज का आता है, लेकिन 50 रुपीज का ब्लॉक आपको देखो बेनिफिशियल एक हुआ आपका कि आपका स्टील कंजम्पशन कम हो गया। सेकंड वे कैसा है आपको प्रूव करने के लिए कि ब्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है और ब्लॉक का स्ट्रक्चर, सबने देखा है ब्लॉक कभी? हैव यू सीन एवर AAC ब्लॉक कभी देखा है? नहीं सर, नहीं देखा पिक्चर्स ही है। देखी है। ओके, हाँ पिक्चर ही चलेगा, लेकिन पिक्चर में इट लुक्स वेरी शार्प, और वो असल में भी शार्प ही आता है, उसके साइजेस एकदम करेक्टेड रहते हैं। ब्रिक के साइजेस करेक्ट हो सकते हैं, कैन यू गिव गारंटी? नो सर। क्यों? क्योंकि वो हैंडमेड है ना, इट इज नॉट मशीन मेड।
बराबर है। जब ब्रिक्स आप ईंट की भट्टी देखी होगी ना हाँ सर। कभी गलती से, हाँ, तो हाथ से बनाई जाती है ईंट, बराबर। जब हाथ से बनाते हो ना तो उसका साइजेस आर नॉट कंफर्म कि पक्का उतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं, देयर इज अ रेंज, वो रेंज में आएगा। बट एवरी ब्लॉक यू कैन टेक एंड साइज इट ना, इट मेजर परफेक्टली 240 by 600 by 150 और 100 विच एवर साइज यू वांट, बराबर। तो ये साइज फिक्स उसकी होती ही है, किसकी, ब्लॉक की। इफ साइज आपकी परफॉर्म है, प्लेन है, फिक्स है, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, टेल मी। सर लेवलिंग एंड प्लास्टरिंग यस, वगैरह। लेवलिंग, एग्जैक्टली, लेवलिंग में क्या होगा कि उसका सरफेस है वो स्मूथ है, बराबर है, तो उसमें क्या होगा कि Yes. हार्डली कम से कम प्लास्टर होगा, इज दैट राइट? देन अगेन यू आर सेविंग दैट प्योर कॉस्ट। यस सर। बट वी आर यूजिंग ब्रिक वर्क, तो उसको जो जॉइंट्स आप भरते हो ना, जॉइंट्स, उसके लिए भी आपको सैंड यूज करना है, सीमेंट यूज करना है, फिर वापस वो प्लास्टर होगा, तो ब्रिक का सरफेस इवन नहीं है, स्मूथ नहीं है, तो प्लास्टरिंग का जो थिकनेस है दैट विल बी मोर देन वॉट एवर यू अप्लाई ऑन दिस एसी ब्लॉक, तो डेफिनेटली इट मे बी डबल। सो तो प्लास्टरिंग कॉस्ट है वो आप एग्जैक्टली 50% सेव करते हो, बराबर। और कोई कोई बिल्डर क्या करते हैं, इंटरनली दे डोंट गेट plaster on that directly putting gypsum on that, so your internal cost is totally reduced. यस सर। Internal plaster actually they should not do, but they are doing. Most of the builders they are doing, they don't do, go for the internal plaster, directly they apply gypsum on that C-porous block. See what will happen, that gypsum quantity is also required less, because that block work is very in line and level. It is not like a brick work, आड़ा टेढ़ा, खड्डा खुड्डा कुछ होगा नहीं, बराबर। Again for block work now you are using chemical to fix, not any mortar. So what will happen, वो भी जो जॉइंट भरने के लिए जो भी mortar जाने वाला था वो आपने कम कर दिया, मतलब आपने कितना सीमेंट मतलब mortar कम कर दिया, जितना सीमेंट mortar कम हो गया उतना आपका कार्बन फुटप्रिंट कम हो गया, यस सर। बराबर है। देखिए मतलब Yes. एक खाली आपने ब्लॉक वर्क कंपेयर किया तो कितना फर्क पड़ता है। दूसरी बात, एक ब्रिक लगना और ये ब्लॉक का लगना फर्क है। एक ब्लॉक के साइज में कितने सारे ब्रिक लगेंगे, इज इट राइट? ब्रिक का डायमेंशन क्या होता है, 230 by 90 by 90, इज इट? पता है ना? हाँ। यस। फिर ब्लॉक का साइज क्या है, इट्स मतलब कम से कम तो आपको 600 का लेंथ पक्का है, 600 by 240 by 150 और 100 ब्लॉक्स अवेलेबल इन 100, 150, 125, 200, ये रेंज में ब्लॉक अवेलेबल रहते हैं। कभी एक ब्लॉक लगाने से, और इधर तो 4-5 शीट लगानी पड़ेगी ना, तभी उतना एरिया कवर होएगा, तो आपका स्पीड बढ़ेगा। यस सर। बराबर ना? तो आप गिनो, आप राइट डाउन कर रहे हो, कितने मैंने बेनिफिट बताया? हाँ हाँ सर। सर। बहुत सारे हो गए कि नहीं हो गए? बराबर। अगर एक चीज आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, आपको खाली ना ऊपर की कॉस्ट दिख रही है, 8 रुपए की ब्रिक है और 50 का ब्लॉक है, बराबर, लेकिन यही ब्लॉक आपको कितने सारे एडवांटेजेस करके दे रहा है, और वो 8 रुपया वो आपको 100 रुपए में पहुंचाएगा, और ये सेम 50 रुपया आपको 80-75 तक पहुंचा देगा। By using this heavy material, you can save the cost as well. But it is not called a heavy. It is not called initial cost is more. But you are developing yourself by using this technology. आप क्या कर रहे हो, आप अगर नए नई चीजें मटेरियल्स यूज कर रहे हो, बट यू आर रिड्यूसिंग, आप वेस्ट भी रिड्यूस कर रहे हो, आप आपका टाइम भी बचा रहे हो, दोनों एक साथ हो रहा है ना। और जैसे कि आपने टाइम बचाया, मतलब क्या हुआ, टाइम बचाया मतलब आपने आपका पैसा बचाया, इज इट राइट? फिर दो काम आपका थोड़ा टाइम में, मतलब 1 घंटे में पूरा होने वाला था, वो अभी कितना होगा, वो आधे घंटे में पूरा होएगा, क्योंकि ब्लॉक का साइज बड़ा बड़ा है, और अगेन दैट इज लाइट वेट, उठाने का भी दिक्कत नहीं है ज्यादा। सो दैट एक ब्लॉक से आप इतने सारे सब सेव कर सकते हो। एक पॉइंट ये था। दूसरा है ना, मेरे को आपको एक एडवांस मतलब ऐड करना है मेरे को, आपको जो आपने रिन्यूएबल एनर्जी रखा था ना, जिसमें खाली आपने सोलर पीवी पैनल रखा था, इसके साथ में ना, अब ये प्रोजेक्ट का बात था, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी में आपको ना क्या रखना चाहिए था, और हाँ कि आप क्या कर सकते हो इसमें ना, आपको ना सोलर हॉट वाटर भी रख सकते हो आप, इज इट राइट? यस सर। यस तो वो भी एक पॉइंट है ना, क्योंकि वो क्या, देखो जो हॉट वाटर है ना वो सबकी नीड है, दैट इज करेक्ट, हर एक को लगता ही है, वो कोई सा भी मतलब फैमिली होने दो, हॉट वाटर लगेगा ही लगेगा, नहीं तो आपको बॉयलर गीजर लगाना पड़ेगा। तो आप ये अगर पॉइंट डालते हो तो वो भी है ना ग्रीन के लिए कंफर्म है,
तो ये भी पॉइंट्स आपको मिलेगा। अभी ये कैसा है, अभी आप अगर देखें ना, कोई ये कॉर्पोरेशन मैंडेटरी किया है क्या कि आपको सोलर हॉट वाटर देना ही है। तो ये क्या है कि वन स्टेप अहेड फॉर ग्रीन। तो ये चीज अगर है तो आपको उसका भी यूटिलाइज करना है। अगर सपोज इन्होंने ये भी डालते थे और बिल्डिंग अच्छी होती थी, इज इट राइट? क्योंकि ये भी आपको देना था कि सोलर हीट वाटर आप दे सकते थे। और दूसरा और एक मैंने मार्कआउट किया था आपने कि हाँ, जो आपने वेस्ट मैनेजमेंट किया था ना, आपने कभी ये सुना है कंपोस्ट? यस सर, यस, दैट इज रिगार्डिंग विद वेस्ट मैनेजमेंट, बराबर? वेस्ट मैनेजमेंट, यस कौन सा? बायोडिग्रेडेबल। तो उसमें कैसा होता है कि इट इज नॉट सो कॉस्टली फॉर Yes, दिस। sir. हाँ, तो जो भी उसका जो मैन्योर बनेगा दैट विल बी हेल्प फॉर देयर सोसाइटी एज वेल। और वो आप ना नर्सरी के साथ टाइप भी कर सकते हो। ये एवरी 15 डेज में मैन्योर बनेगा, वो आप है ना, आप मतलब टाइप कर सकते हो किसके साथ? एक नर्सरी के साथ। तो फिर वो बंदा आएगा और खुद लेके जाएगा, है ना? आपको कुछ भी काम करना नहीं पड़ता है। तो उसके बैग्स भी अपने आप बन जाते हैं और बाजू में भी रखे जाते हैं। तो ये चीज कैसा होता है कि मतलब मेरी सोसाइटी कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। किसके ऊपर? आपका कॉर्पोरेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब हम लोग कचरा जनरेट करते हैं और हम लोग ही उसको रीयूज कर रहे हैं। तो आपका जो वेस्ट है या डेब्रिस है, डेब्रिस प्रोडक्शन आपका जितना होता है वो आपको बराबर बैलेंस कर रहे हो। जितना आप क्रिएट कर रहे हो आप सब यूज भी कर रहे हो। Again, you have to mention that what your STP plant. Is it clear? हाँ, STP भी yes, होना sir. चाहिए ना? Yes, तो वो भी हम लोग Yes, क्या sir. कर सकते हैं? रिसाइकल वाटर हम लोग कर सकते हैं, है ना? अभी STP प्लांट का रिसाइकल वाटर जो होगा उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है। मतलब क्या, you won't use that so much of chemical। ज्यादा केमिकल वापरने से क्या होगा कि अगर आपको ही हार्म होगा, तो किसको? इंसान को हार्म होगा। जैसे आपने बताया कि इट इज हेल्थ वाइज वेरी गुड, तो हेल्थ वाइज वेरी गुड है। तो फिर जो STP है दैट शुड बी विद नॉर्मल रिवर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड रीड बेड टेक्नोलॉजी। वो अभी तक अवेयरनेस नहीं है लोगों को। रीड बेड टेक्नोलॉजी आपको पता है, जो रिवर्स है, रिवर अपने आप साफ होती है ना, जैसे बहते बहते आगे जाती है उसका पानी क्लियर होते जाता है। तो Yes, सेम sir. टेक्नोलॉजी है ना। एनीबॉडी हर्ड रीड बेड STP, रीड बेड टेक्नोलॉजी फॉर STP? किसी ने सुना है, पढ़ा है? हाँ सर, सुना है। यस, तो ये भी एक टेक्निक है कि यहाँ पे क्या होता है कि आपको ना जीरो एनर्जी पर आपका पानी जनरेट हो सकता है, और वो भी एकदम प्योर तालाब के जैसा। बराबर? जीरो एनर्जी मींस व्हाट कि आपका जो टोपोग्राफी है, आपकी बिल्डिंग की या प्लॉट की टोपोग्राफी है, उसको यूज करके आपको ऐसा स्टेप डाउन आप STP बना सकते हो। विच इज जो उसका आउटकम आएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि दैट इज रिसाइकल वाटर। आप उसको अच्छे से पॉइंट बना सकते हो, किसको पता भी नहीं चलेगा क्या। मतलब मैंने खुद देखा है कि वो पॉइंट पर है ना, डक है, फिश है, अंदर सब कुछ है, और आप उसके बाजू में खड़े भी रहेंगे तो आपको यू वोंट फील कि अरे बाद में पता चलेगा, अरे लगता ही नहीं है कि इसका वाटर है करके। Sir, this kind of Yes. technology can be used on a contour site, Yes. जहाँ पे levels है। Okay. हाँ, यू हैव टू बी यूज, क्योंकि वही तो मैं बोला ना कि टोपोग्राफी का यूज करके लेना किसका सबसे बड़ा किसका काम है? आर्किटेक्ट का ना, कि वो पहले उसका मालिक है, ओनर तो बाद में है। एग्जैक्टली तो आप मतलब जैसा आपको चाहिए ना, वर्ल्ड कैसा बनाना है ना, वो एक आर्किटेक्ट बना सकता है कि ये दुनिया मेरे को ऐसी बनानी है। दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो देखिए, आप सब लोग है ना क्या करना चाहिए, अपने पे है ना शाबाशी दो कि मैंने ये लाइन चुनी, मैं ये सब क्रिएट कर सकती हूँ। बराबर है कि जो आप सोचोगे ना वो बनता है ना। व्हाट इज राइट? क्योंकि आप इमेजिन करके सब ड्रॉ प्लान बनाती है, और हम लोग क्या करते हैं, उसको बनाते हैं ना। तो उसका एक्चुअल मेन मदर कौन है? आप ही है ना। तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी मेन मदर कौन है? आपने उसको जन्म दिया था कि ऐसे ऐसे बनना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और वैसे हो जाता है। तो आप अगर थोड़ा सा सोचे अपने देश के बारे में, अपने एनवायरनमेंट के बारे में, तो क्यों नहीं ये फिजिबल है। और दूसरी बात, अगर मैंने को ग्रीन नहीं करनी है, लेकिन ग्रीन में से जो जो कॉन्सेप्ट है आप नॉर्मल बिल्डिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हो। Yes, sir, retrofit कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट सब हो जाएंगे फिट, ऑलमोस्ट। Yes, देखिए, sir. आपका पता है विंडो टू वॉल रेशियो क्या होना चाहिए? एनी आइडिया? No, sir. नो आइडिया। तो ये आपको गृह का मेन पॉइंट है, जो आप बोल रहे हो ना कि उसको ईस्ट वेस्ट अपने को वेंटिलेशन देना है, मतलब वेंटिलेशन अच्छे से होता है। एयर वेंटिलेशन का जो पॉइंट था ना आपका, इसका मेन पर्पस क्या है कि विंडो टू वॉल रेशियो शुड बी मिनिमम 25% होना ही चाहिए। मतलब जो विंडोज है ना, कम से कम आपको 25% होना चाहिए वॉल के एरिया के सामने। और अगर आप क्रॉस वेंटिलेशन दे रहे हो ना, तो देन स्वर्ग है।
क्यों? क्योंकि जब जितना आप क्रॉस वेंटिलेशन दोगे उतना क्या होगा, व्हाट विल हैपन, एयर फ्लो एंड एयर फ्लो होगा और उसका इंप्लीमेंट किस पे जाएगा, योर सर एनर्जी कंजम्पशन विल बी लेस, लेस, यस सर, एनर्जी कंजम्पशन विल बी लेस। बराबर, जो फैन आपको 4 पे चल रहा है वो आप 2 पे रखेंगे ना, जरूरत नहीं है उतना ही करो, कम करो, एसी इतना जरूरत नहीं, 1 पे करो चलेगा, राइट? अभी जरूरत ही नहीं है एसी का, क्योंकि विंड आप जनरली क्या होता है, एक ही विंडोज प्रोवाइड करते हैं, एक विंडो से क्या होता है, हवा अंदर आता है, हवा फ्लो कैसा होगा, उसको आउटलेट होना चाहिए ना, यस तो सर, आपने, यस, तो आपने अगर कॉन्सेप्ट में रखे दो विंडो तो डेफिनेटली इट विल वर्क। बराबर, आपका मतलब एनर्जी कंजम्पशन अपने आप बिल्डिंग का ये हो जाएगा। और सुनिए, अगर आपने ऐसा घर बनाया कि जहां पे मतलब लाइट का कंजम्पशन कम आ रहा है, पानी में आपके अच्छे अच्छे लो फ्लो टैप्स लगाए, अभी लो फ्लो टैप्स लगते हैं, उसका कॉस्टिंग कितना मालूम है, हार्डली ज्यादा है, हार्डली एक फ्लैट के पीछे आपको है ना 3000 रुपीज खर्चा आता है, कितना, 3000 रुपीज पर फ्लैट फॉर 1 3 BHK। कैन यू बिलीव? अभी 1 3 BHK जो फ्लैट लेता है उसके सामने 3500 रुपए ये कुछ कीमत है, जो बंदा 3 BHK का फ्लैट लेता है उसके सामने क्या है, कुछ भी नहीं है ना, दैट इज नथिंग। बराबर, तो हम लोग क्यों नहीं इंप्लीमेंट करें, बराबर है? तो आप अगर ये मतलब जो लो फ्लो ये है फिक्चर्स है, लो फ्लो टैप्स उसको बोलते हैं, अगर वो आप फॉलो किया तो आपने क्या करना है कि 50% आप ना स्ट्रेट अवे वाटर सेव करते हो, अगर 50% वो वाटर सेव हो जाएगा और 50% आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेव हो जाएगा, तो आपने क्या किया, क्यूमुलेटिव आपने पूरे बिल्डिंग की 50% एनर्जी सेव की। एंड ग्रीन बिल्डिंग डजंट मीन कि आपको बिल्डिंग बाहर से ग्रीन करनी है, बराबर है? ग्रीन बिल्डिंग डजंट मीन, अभी ये जो ना देखिए, अब ये जो सामने जो राइट साइड में स्ट्रक्चर है ना, उसका एक ही डिसएडवांटेज है, क्या है पता है आपको? ग्लास है उस पे तो नहीं, ग्लास है तो वो तो है ही, वो तो है ही, एक बड़ा डिसएडवांटेज है, मैं आपको उसके लिए आऊंगा बाद में। जो सामने ग्रीन पट्टा दिख रहा है ना वर्टिकल, इससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन? नेगेटिव तो समझ नहीं आ रहा, पॉजिटिव पॉजिटिव दिख बहुत रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, डिजाइन लुक एलिगेंट, सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज ओके, बराबर है। लेकिन इसका जब मेंटेनेंस पीरियड आएगा, इसको तो मेरे को पानी पिलाना पड़ेगा कि बिना पानी का आएगा? सर व्हाट आई लर्नड इज कि जो स्पेशली इस फसाड पे यूज करते हैं वेजिटेशन, वो जो एयर का जो ह्यूमिडिटी रहता है उनमें से हाँ, ग्रो होते हैं, नहीं तो एग्जैक्टली होता है, बराबर है, लेकिन है ना आपको है ना सर्टेन टाइम पर ना उसको पानी मारना भी जरूरी है। हम लोग ग्रीन वॉल लगाते हैं, आर यू इन पुणे, आप पुणे से हो? जी सर, हाँ बराबर है, तो आप शिवाजी का में देखना, अविनाश भोसले का बिल्डिंग है मालूम है, ऑफिस का, हाँ हाँ हाँ, हो सर, ये सर, ये है ना, पता है ना आपको? अभी इनको जाके पूछना आप कितनी बार पानी मारते हो, ओके ओके, बराबर। अभी उन्होंने क्या किया मालूम है ना, उसने बेस्ट आइडिया किया है, उसने अपने कंपाउंड वॉल पर लगा दिया है, हाँ बराबर। सर, ये यस, ये वॉल किसका है, ये एक्चुअली बिल्डिंग का वॉल है, इज इट राइट? यस सर, यस, तो उसका अगर मेंटेनेंस प्रॉब्लम आ गया तो हु विल सफर? द ओनर्स, द टेनेंट्स, जो रहेंगे यस उनको ही तकलीफ है ना। पर आपने क्या यस किया, आपको अच्छा दिखता है करके आपने लगा दिया, डोंट, आपके ऊपर मत लेना, आप उसके अंदर रहती हो समझो, आप एक अपने फाइनल एम क्या है कि मेरा बिल्डिंग अच्छे से लगे और फंक्शनल हो, बराबर है? आपने यस वो भी सर, वर्ड डाला था ना, उसकी यूटिलिटी पर्पस एकदम सुपर होनी चाहिए। अभी आप यस इमेजिन सर, करना कि अभी उसका वेंटिलेशन टैंक कुछ लीकेज हुआ, कुछ हुआ, तो हु विल बेयर दैट? सोसाइटी के और लिए द आएगा, बराबर। बाद में फिर क्या होगा, सोसाइटी इकट्ठा होकर बाद में क्या डिसीजन लेगी पता है, क्या डिसीजन लेगी? टेल मी इफ यू आर द वन मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी। नहीं, क्या नहीं क्या क्या पता सर, नहीं पता है, मतलब ओके फाइन। अभी देखिए, अगर ये बार बार उसका मेंटेनेंस लीकेज का चक्कर आ गया तो फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये पूरा का पूरा ग्रीन निकल जाएगा और वहां पे कुछ दूसरा ही आ जाएगा, Just like swimming pools as well, majority of the यस, swimming स्विमिंग pools. पूल के लिए भी ऐसा होता है ना, बाद में वहां पे गार्डन बन जाता है, पार्किंग लॉट बन जाता है, पता है? तो अपने को ऐसा डिजाइन करना है ना, वो सस्टेनेबल होना चाहिए। और दूसरी बात है ना, और किसके साथ में जोड़ूंगा, कौन सा, जो सस्पेंडेड सॉरी जो स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग किया ना राइट साइड में, वो जो ग्लेजिंग है, वो ग्लेजिंग आपको खास ध्यान में रखना है कि अगर वो नीड है, प्रोजेक्ट का नीड है तो ही लगाना है, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, आपका वो विंड ब्लॉक करता है पूरा,
पहली बात। दूसरी बात क्या मालूम है, विंड ब्लॉक करता है और वो हीट अंदर ट्रांसफर करता है, तो क्या हो गया, आपको सामने से अपना है ना बाहर आग लगानी है, अंदर बैठना है और एसी चालू करना है। इज इट राइट? यस सर, करेक्ट। बराबर। अब ये फिजिबिलिटी किधर थी मालूम है ना, किसको अंदर गर्म चाहिए था, सर फॉरेनर्स जहाँ को पे चाहिए था। कोल्ड कंट्रीज है। यस, हाँ सर। फॉरेनर्स को चाहिए था, बराबर। तो हमारे से आर्किटेक्ट क्या हुआ है, उधर देखने के लिए गए। डोंट माइंड ऑन योर साइड, बिल्डर भी नो सर, उधर गए देखने के लिए, बराबर। आप हम दोनों एक उधर देखने के लिए पूरी टीम गई, अरे वाह बहुत अच्छा बिल्डिंग है, बहुत अच्छे से ग्लेजिंग किया, अच्छा है, मैं भी ऐसा ही करूंगी, बराबर है। फिर आपने क्या यस किया, सर। दीपेश सर को पकड़ा, नहीं यस बहुत सर। अच्छा है, देखो ये लुक देखो कितना अच्छा है, ऐसी बिल्डिंग तो इंडिया में दिखेगी नहीं किधर। इज इट? फिर आपने क्या किया, वो सोच को इंप्लीमेंट कर दिया इंडिया में, बराबर। अभी अंदर बहुत गर्म होने लग गया, फिर क्या किया आपने, अपने सेंट्रल एसी लगाने के लिए बोल दिया उसको। इज इट राइट? यस सर। अपने जो आईटी पार्क क्या है अभी, सब वही है नमूने, यस बाहर से सर। बंद करना और अंदर फुल फ्लैश एसी छोड़ना। इज इट? तो ये वर्केबिलिटी नहीं है, ये सस्टेनेबिलिटी नहीं है, बराबर ना। क्यों आईटी पार्क में अगर आप ग्लेजिंग नहीं करोगे तो चलेगा नहीं आईटी पार्क। व्हाट डू यू थिंक? हाँ सर, इट्स रॉन्ग टू प्रोवाइड इट स्पेशली इन अ यस, कंट्री लाइक तो इंडिया। हमारे नो हाउ के आर्किटेक्ट जो भी निकलेंगे ना, तो उसने पहला क्राइटेरिया क्या रखना है कि वो फिजिबल होना चाहिए इंडियन यस। क्लाइमेट के अनुसार। शुड नॉट कॉपी द थिंग। आप कॉपी करो, अच्छी चीज की कॉपी करो, बार बार कॉपी करो, लेकिन उसका सब कुछ जानने के बाद क्या सही है, क्या बुरा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। फिर इसके लिए अगर आपको किसको भी हेल्प लेनी है, किसी के भी आपको लेना चाहिए, बराबर। अदरवाइज अपने आपको एक ये तो आइडिया दूं कि सपोज अगर आप है ना इधर से गांव जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, और नीचे रिवर आ गई, नीचे रिवर आ गई, आपको ब्रिज से ऊपर जा रहे हो, आपको ब्रिज आती है, महसूस किया है कभी आपने? हाँ क्या जी। सर? मतलब आप अगर ब्रिज पे से क्रॉस हो रहे हो और दोपहर 12 नून है, 12 पार हो गया है और आप ब्रिज पे से जा रहे हो, सब जगह पे हॉट है, लेकिन आप जब ब्रिज पे से जा पास होते हो और नीचे पानी बह रहा है नदी का, तो आपको ठंडक आती है, ब्रीज, यस सर, यस सर। ब्रीज आती है, ब्रीज आती है, यस सर। आती है ना। बाजू में इतना हॉट है तो भी आती है। यस सर। यस सर। यस, तो फिर आप ये क्राइटेरिया क्यों नहीं यूज करते हो आपका बिल्डिंग का टेम्परेचर कूल करने के लिए? हो सकता है? यस व्हाट सर। डू यू थिंक? हो सकता है? कैसे हो सकता है? एनी आइडिया? The fountains, water bodies. Again, that will Um, cost more. Maintenance cost will be higher. कि मैकेनिज्म आएगा ना, इलेक्ट्रिक कॉस्ट विल बी हायर। क्या हो सकता है? हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? सर कर सकते हैं अगर जैसे हाँ, आप एग्जांपल दे रहे थे कि नेचुरली कुछ अवेलेबल वाटर बॉडीज हो अराउंड द साइट, फिर यूज कर सकते हैं। यस। और अगर नहीं है तो यू कैन क्रिएट, यस सर, वी कैन क्रिएट बराबर, वाटर बॉडीज। क्रिएट, बराबर। तो इसका है ना इम्प्लीमेंटेशन यूज करना चाहिए। एक स्कूल है, ये मैं फैक्ट देखा है, एक स्कूल है, उसने क्या है मालूम है, बेसमेंट में वाटर टैंक है, यूजू वाटर टैंक, बेसमेंट में बहुत बड़ा वाटर टैंक है, और उसने क्या किया मालूम है कि बेसमेंट के वाटर टैंक के ऊपर है ना 3-4 है ना ब्लोअर्स लगाए, ब्लोअर्स हवा खींचने के लिए, और वो हवा अंदर आती है और वाटर टैंक के ढक्कन के ऊपर से ना पूरा का पूरा, मतलब आपने कभी मॉल पे हम लोग जाते हैं, मतलब एट्रियम रहता है, मॉल का हाँ एट्रियम सर। रहता है ना, एट्रियम मतलब क्या, एक बीच का एक ओपन पोर्शन रहता है, वो एकदम स्ट्रेट ऊपर तक ओपन रहता है, फिर ऊपर आप उसको है ना स्काईलाइट से कवर करते हो, जैसे फिर अंदर ये रहता है आपका क्या बोलते हैं उसको, लिफ्ट्स रहेंगे, एस्केलेटर्स रहेंगे, स्टेयरकेस रहेंगी, पता है आपको, वैसा मॉल में रहता है। तो वो जो एट्रियम टाइप है ना, वो फुल जो स्कूल का एट्रियम के अंदर है ना, उसने वो फ्लो, हवा का फ्लो टैंक से ऊपर आता है और वहां पे ओपन कर दिया ऊपर तक, बराबर। अब ये ओपन कर दिया तो क्या होने लगा मालूम है, वो बाहर से हवा आती थी, पानी के ऊपर से होके ऊपर जाती थी, व्हाट विल हैपन, क्या होता था, वो गर्म हवा बाहर से आएगी, पानी को लग के क्या होगा, हवा
ठंडा होएगा और वो ठंडा होके हवा क्या आ जाएगी, हवा ऑलवेज फ्लो अपवर्ड्स, बराबर कि नहीं, जो गर्म होता है ऊपर जाता है, तो वो ऊपर जाएगी सीधा और अपने एट्रियम में से लेके सीधा टेरेस तक निकलती थी। तो पूरा का पूरा वो परिसर था अखा, वो पूरा का हमेशा लाइक एसी के जैसा ठंडा रहता था। दे वोंट रिक्वायर एनी एसी। तो ये सब टेक्नोलॉजी आप अगर यूज करोगे तो आपको वो लोग मरने तक दुआएं देंगे कि नहीं देंगे, बोलो आप? यस सर। सर ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था? ये हुआ था पुणे में, उसका एक कॉपी किया था, लेकिन पुणे में सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन ये हुआ है अमेरिका में। ओके सर। यस, तो ये ऐसा टेक्नोलॉजी यूज होना चाहिए था। आप वो कॉपी करो ना, बराबर है। ये कॉपी करने के लिए क्या लगेगा आपको? थोड़ा सा दिमाग लगेगा ना, लेकिन इसमें कॉस्ट क्या है? 0 है, और आप कितना कॉस्ट बचाया, बराबर। तो ऐसा डोंट कॉपी, मतलब जो एस्थेटिक जो है उसके लिए नहीं जाना, वो वर्क मतलब फंक्शन होना चाहिए वो जो चीज। और कितना हम लोग कर सकते हैं मालूम है? ये ग्रीन बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। और दूसरी बात, अगर आप ये ग्रीन सपोज ग्लेजिंग यूज करना ही है, इस मैंडेटरी आपके डिजाइन के लिए वो चाहिए, सपोज आप मॉल बना रहे हो तो ग्लेजिंग लगेगा ना, तो फिर वो ग्लेजिंग में आप क्या यूज करोगे कि वो ग्रीन बने? यस सर। यस, ग्लेजिंग वो यूज, ग्लेजिंग को आप क्या करेंगे कि उसका जो SRI है, SRI मींस सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वो आपको क्या करना चाहिए? हाई करना चाहिए, बढ़ाना। यस सर। बढ़ाना चाहिए। वो जितना बढ़ेगा उतना रिपेलेंस बढ़ेगा, और अंदर क्या होगा, और इवन आपको मालूम है अगर वो चीज है तो आपको DGU वापरना चाहिए। DGU मतलब डबल ग्लेज यूनिट, ग्लास। यस सर। बराबर है। तो उसमें क्या होगा कि जो बाहर से आपको कलरफुल ग्लासेस दिखते हैं ब्लू, और अंदर से क्लियर ग्लास होनी चाहिए, बीच में वापस एयर गैप रखना चाहिए आपको। और जो बाहर की जो ब्लू ग्लास है जिसमें डायरेक्टली वेदर इफेक्ट होने वाला है, तो उसके साथ आपको ये भी देखना है, क्या मालूम है, कि अगर आप जितना ब्लूइश जाएंगे या ग्रीनिश जाएंगे तो क्या होगा, अंदर उतना अंधेरा आएगा। बात समझ? धूप को तो रिपेल किया, बट व्हाट अबाउट लाइट? तो एनर्जी ट्रांसमिशन भी होना चाहिए ना, जो लाइट का ट्रांसमिशन वो भी होना चाहिए, एनर्जी का रिपेलेंस होना चाहिए, लेकिन क्लियर लाइट का ट्रांसमिशन भी होना चाहिए। तो आपको इसका मीन चूज करना पड़ेगा, बराबर। तो मतलब इट इज एक्चुअली साइंस भी है इसके अंदर। और जब आप ऐसे तरीके से आप डिजाइन करोगे क्या, ग्लेजिंग, तो वो अंदर का टेम्परेचर बढ़ाएगा नहीं। बात समझे आप? यस सर, गॉट इट। यस, तो अपने को ऐसा ट्रीट करना है, मतलब अननेसेसरी इसी के ऊपर है टेक्नोलॉजी तो वापरो, ये गलत है ना, है करके वापरना नहीं ना। आपने जस्ट ना बोला था ना कि जो रिसोर्स है आपको क्या करना है, उसको कंजर्व भी करना है ना। यस सर। जो है अवेलेबल उसको संभालना भी है ना आगे तक। तो हम लोग ही खा गए तो पीछे वाले तो कुछ उनको पानी और ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं नेक्स्ट जनरेशन को। जैसे दिल्ली में क्या हो रहा है मालूम है ना, वो सिलेंडर लेके घूमते हैं सब, इज इट? बराबर। हाँ तो फिर यस, हाँ तो फिर अभी इधर भी होगा ना ऐसा, अभी हमने नहीं किया तो ये चीजें ना खास ध्यान में रखने। और मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू थैंक यू ऑल ऑफ यू 4 गर्ल, क्योंकि इतना अच्छा टॉपिक चुना है, और इसके लिए बोलने के लिए मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम का कंस्ट्रेंट भी है। लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस पर आप गिव अप नहीं करना। ये प्रेजेंटेशन हो गया तो खत्म नहीं करना है। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, यस, आपने आगे जाना है, चलना है, आप प्रैक्टिस पूरा करोगे, कहाँ भी जाओगे तो यू प्रिफर ग्रीन बिल्डिंग, मेरे को देखना है, करना है, क्या करना है। इवन मालूम है जो पेवर्स है ना, अब जो अभी बोला था कि जो पेवर्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल पेवर्स, ये पेवर्स हमने यूज किए हैं सब कुछ, और वो कुछ भी महंगे नहीं है कंपेयर टू दिस नॉर्मल। अभी जो पत्थर रोड पे लगाते हैं ना, उससे कॉस्ट से ये पेवर सस्ते हैं। यस सर। हाँ, तो कभी भी ऐसा नहीं, महंगा है ही नहीं वो चीज। इवन मालूम है जो आपने वुड का बोला था, मैं थोड़ा उसके भी अगेंस्ट था कि एक्चुअली वुड नहीं वापरना चाहिए। जैसे आप वुड के लिए परमिशन देंगे तो व्हाट विल हैपन पता है? डिफॉरेस्टेशन। यस, फिर इसके लिए क्या है, अभी देखिए हमने वुडन का फ्रेम भी नहीं यूज करते। हम लोग जो फ्रेम का मटेरियल यूज करते हैं दैट इज व्हाट, इको प्रो सीमेंट फाइबर शीट। वो किससे बनता है मालूम है? जो झाड़ का साल होता है ना, क्या बोलते उसको, आप बोलते हैं उसको टॉपमोस्ट को कवर, हाँ, बाहर का जो ब्राउनिश, तो उसमें क्या होता है कि जब झाड़ काटते हैं या झाड़ गिर जाता है तो लोग क्या करते हैं, कटिंग करके भेज देते हैं। जो कटिंग करके भेजते हैं तो उसका जो वेस्टेज है ना, वो वेस्टेज को है ना मतलब झाड़ के अंदर का जो फाइबर है वो ये सीमेंट शीट के अंदर डालते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और इतना स्ट्रॉन्ग बनता है ना, तो ये वुडन फ्रेम हमने मतलब सीमेंट शीट के फ्रेम हम टॉयलेट को भी यूज करते हैं।
टॉयलेट के डोर फ्रेम है ना, वो भी उसकी आपको पता ही नहीं चलता है किसका है. इट इज बैंग लाइक अ वुडन बट इट वोंट बी वुडन. वो पूरा ऐसा कि आपको कंटाला आएगा कि अभी मेरे को नहीं वापरना है, बदली करो, तब आप बदली करोगे, लेकिन वो सड़ेगा नहीं पानी से. तो such type of material is there and very cheap. Also, sir, they discussed of the about the high SRI index paint on the rooftop. Also, sir, they discussed about the high SRI index. और हाँ, वो पेंट का भी हमने मिस इन्होंने जो स्टडी किया था, फॉर यू, हैट्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छे से किया है, दिल से किया है. और लेकिन ये प्रोजेक्ट सक्सेस करके दिखाना है. मतलब मालूम है, ये आईटीसी का नाम आगे नहीं आएगा. अभी आपका खुद का प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए और उसके साथ में आपका हर एक इंडिविजुअल, मतलब 4 प्रोजेक्ट दिखना चाहिए और हर एक इंडिविजुअल नाम आना चाहिए कि आर्किड ये, आर्किड अनुराधा, आर्किड अमका, आर्किड प्रणीता, आर्किड साक्षी, ऐसा नाम आना चाहिए. बराबर. तो ये जैसे आप सोचोगे वैसा बनेगा और बहुत मस्त है काम करने के लिए. इसके अंदर ये फील्ड आपने चूज जो किया है उसके लिए ना अपने को और ऊपर वाले को अगेन आपको थैंक्स बोलना है कि थैंक यू सो मच कि मेरे हाथ में कुछ क्रिएटिविटी थी करके मैंने आपने मेरे को ये लाइन पकड़ा दी. अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल. आपको भी इतना दिमाग नहीं देता था ना कि हम लोग ग्रीन पे काम करें, ग्रीन के लिए बात करें. वापस और एक बात छोटी सी बता रहा हूँ कि जो लैंडस्केप होता है ना, लैंडस्केप में भी है ना, आपको जो ट्रीज वापर रहे हैं ना, वो भी देखो आपने एक पॉइंट यूज किया था कि यू हैव टू डोंट गो फॉर, अगर मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ बराबर और आपने को सजेस्ट करे कि दिल्ली में ना ये टाइल बहुत अच्छी मिलती है, आप उधर से लेके आओ. विल इट फिजिबल सर? अभी दूसरा देखो, अपने को स्टाइल रहता है, मालूम है ये कहाँ से खरीदा तूने, ये इम्पोर्टेड है, अमेरिका से आया है. विल इट फिजिबल? नो सर. नो ना. ये टाइल कहाँ का है? चाइना का है. मैं चाइना के अगेंस्ट, मतलब वो टॉपिक अलग. आज सब लोग बोलते हैं ना ये चाइना का टाइल है, 6x4 का टाइल है, 8x4 का टाइल है, देखो कितना मस्त है, बेहतरीन है. बराबर. अभी आपने क्या किया, कितना उसको एनर्जी वेस्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी कितना गया, अननेसेसरी गया. बिजनेस तो गया ही गया, लेकिन आपने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन भी वेस्ट कर दिया. तो ये कैसा लोकल अवेलेबल चीज होनी चाहिए और उसमें आप काम करना. अगर आप हैदराबाद में काम करें तो लॉट्स ऑफ ग्रेनाइट और स्टोन्स अवेलेबल है उधर. यस सर. लेकिन आपको ग्रेनाइट काटना नहीं है, आपके प्रोडक्ट के लिए ग्रेनाइट काटना नहीं है, आपको कम से कम यूज करना है, आपको मैक्सिमम टाइल यूज करना है. व्हाई इट इज लाइक दिस? सर वेस्टेज. नो. वेस्टेज ऑफ व्हाट? वेस्टेज ऑफ व्हाट? वेस्टेज ऑफ नेचुरल सोर्सेस. ग्रेनाइट क्या है? नेचुरल. पहाड़ है ना. आप ग्रेनाइट वापरोगे, कोई मार्बल वापरोगे, इसका मतलब क्या है कि आपको उसको काटना पड़ेगा ना, पहाड़ खोदना पड़ेगा, क्वेरी में जाके से उसको सब कट करना पड़ेगा. बराबर. लेकिन टाइल क्या है? व्हाट इज टाइल? नेचुरल. मैन मेड है. मैन मेड. इट्स नॉट नेचुरल, दिस इज रिसाइकल्ड, रीयूज्ड. बराबर. मतलब ये प्रोडक्ट आप मैक्सिमम, आप आर्किटेक्ट ने बोले नहीं मेरी बिल्डिंग में मार्बल नहीं लगेगा, मेरी बिल्डिंग ग्रेनाइट नहीं लगेगा, तो क्या होगा मालूम है ना आपको? ये कहावत पसंद है, दोज और महाराष्ट्र दे नो की सोनाराने कान टोचले ना तो दुखत नाही. बरोबर. हो सर. बरोबर है. व्हाई इट इज सो कि अगर आर्किटेक्ट ने सजेस्ट किया नहीं मेरे बिल्डिंग में ग्रेनाइट लगेगा ही नहीं, मेरे एक्सेप्ट किचन प्लेटफॉर्म मेरे पास किधर भी ग्रेनाइट नहीं होना चाहिए. बराबर. तो क्या किया आपने, वो पर्टिकुलर बिल्डिंग का. हाँ जी. We have new material which we can replace against granite. We call it as quartz or artificial stone. It is much more harder and it is much more harder than granite. Yes, you can use, but what happened now? You have to take again cost thing, na? If it's harder, it may cost. But for project, for project we can have it on a cheaper rate. You can get again. You can use of that thing. What you said that can be easily bent, but a little bit costly, like a laminate. Korean. I've forgotten that name. Solid surfaces, Korean. Korean, yes. So Korean you can use, yes. Korean you can use for platform. बराबर. अगर वो ब्लैक कलर का है तो you can use, but it is so costly. That sheet is so costly. तो ये मतलब 800 रुपया पर स्क्वायर फीट है वो. तो फिर ये चीज आपको खास ध्यान में रखनी है, मतलब क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना है. बराबर. तो ये सब क्या आर्टिफिशियल है वो. You can use that, but that depends on what your client's taste. But client नॉर्मल है तो आप इतना तो बोल सकते हो ना कि खाली काउंटर के जितना करना है, बाकी ग्रांट आपको कैंसिल करो. तो उतना क्या होगा, आपका बिल्डिंग टुवर्ड्स ग्रीन भी जाएगा, आपने जो नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम यूज किए हैं और रिसाइकल के ऊपर ज्यादा ये कर दिया आपने.
ये चीज आप कर सकते हो। इवन आप जो प्लास्टर के लिए आप उनको बोलते हो, सो डोंट गो फॉर कन्वेंशनल प्लास्टर, गो फॉर रेडी मिक्स प्लास्टर हैविंग नो जीरो रिवर्स सैंड। आज न कल होने वाला ये वो, क्योंकि अभी जो क्या सैंड का रॉयल्टी मिलता नहीं है, चोरी से सब लोग लेके आते हैं, तो कभी ना कभी वो जाके जीरो होने वाला है एक दिन। तो उससे अगर अभी से जो भी आपका इंडस्ट्री वेस्ट है वो यूज करके जितना भी आप ग्रीन प्रोडक्ट निकलते हैं, मतलब वेस्ट रिसाइकल करके हम लोग रीयूज करते हैं, तो ये प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट इसके अंदर है। आपको अगर एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एनोप्लास्ट करके एक ऐसा ही ये है कि ब्लास्ट फर्नेस में से ये काफी सारा ये निकलता है। कौन सा आपका ये सिलिका वेस्ट निकलता है। तो सिलिका वेस्ट आप सैंड को रिप्लेस कर सकते हो, और ये करके आप ये यूज करोगे तो उसमें आपको सीमेंट भी मिक्स करना नहीं पड़ता है। सो एंड क्यूरिंग पीरियड भी उसका लेस देन हाफ, मतलब जो 7 दिन का क्यूरिंग पीरियड, उसको 3 ही दिन क्यूरिंग पीरियड लगता है। तो ये सब चीजें बहुत बेटर करती है। सर, और वेस्टेज कुछ भी नहीं है, और उसमें वेस्टेज जीरो है। किससे? सैंड को हमें नहीं हमने यूज नहीं किया है। यस यस, जो हम स्क्रीनिंग करते हैं सैंड का, वो भी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि दैट इज रेडीमेड, आपको कुछ करना नहीं। आपको आपने कितना एनर्जी सेव किया मालूम है? जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको अगर नीचे स्क्रीन करना पड़ता है, ऊपर उठाना पड़ता है, उठाने के लिए कैन यूज पावर, मैकेनिकल टूल्स, वो कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट एक सीमेंट की बैग आप उठा के लेके जाते हो, जस्ट लाइक दैट ओनली, कि उतना खाली एक बैग लेके जाना है, काम करना है। इवन मालूम है जब वाटर मिक्स करते हो और उसको आप स्प्रे करते हो, वो जो वाटर है वो नीचे गिरता नहीं है, वो लम्ब बन के चिपकता है दीवार। तो अगेन वेस्टेज एकदम रिड्यूस होता है, मिनिमाइज होता है वेस्टेज। ये सारी चीजें ना आपको उनको क्लाइंट को समझानी है कि कैसे ग्रीन बिल्डिंग आपको फ्रूटफुल है, कैसे ग्रीन बिल्डिंग जो बाद में जो ये आएगा, जो कस्टमर आएगा, एंड यूजर आएगा, उसके लिए कितना बेनिफिशियल है। क्योंकि आपको उनको ऐसा कन्विंस करना है, सी अगर आपने अच्छे से ग्रीन बिल्डिंग बताई, उसका पूरा का पूरा एसटीपी का मेंटेनेंस कॉस्ट, पानी का मेंटेनेंस कॉस्ट, लाइट का मेंटेनेंस कॉस्ट अभी कम से कम हो गया। अब इसमें और एक चीज आती है, कौन सा मालूम है? कि आपकी जो लाइट है, लाइट के ऊपर टाइमर लगाया जाता है कॉमन एरियाज के लाइट के ऊपर। मतलब कैसा होता है कि रात शाम को अगर 6 बजे बत्ती चालू कर दी तो सुबह वो 7 बजे ही बंद होती है, बराबर। तो ये चीज क्यों है? क्योंकि रात को 10 साढ़े 10 के बाद कोई घूमता नहीं है, फिर भी सब लाइटें दिवाली चालू रहती है। तो वहां पर अगर टाइमर स्विच रहेगा तो इंडिपेंडेंट क्या होगा कि अमुक सपोज पैसेज का लाइट है, लिफ्ट का लॉबी का, तो 2-4 लाइट रख के बाकी के 4-5 लाइट आप अपने आप 10:30 बजे बंद हो जावे। फिर कंपाउंड की लाइट है, वो भी लाइट बाद में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना रख के बाकी की सब 10:30 बजे के बाद बंद हो जाए। अपने आप अगर बंद हो तो अपने आप आपका कंजम्पशन बढ़ता मतलब हो जाएगा। they can also use presence detector, motion sensor. यस, मोशन सेंसर भी होना चाहिए कॉमन एरियाज में, स्पेशली इन क्लब हाउस। वहां पे है ना, किसको ये नहीं, घर में तो क्या मम्मी है, जैसे लाइट चालू, बंद करो, वो बोलने वाला टिक टिक घड़ी उधर है, लेकिन कॉमन एरियाज के लिए कोई नहीं होता है। जाने दो किसका है, ना तेरा ना मेरा है, जाने दो, सोसाइटी पर रहेगा। वहां पे ना मोशन सेंसर्स होना चाहिए, उसके टॉयलेट्स में होने चाहिए। इवन उसके जो कौन सा हॉल, मल्टीपर्पज हॉल है या जिम है, वहां पे ये चीजें अच्छे से फायदेमंद होती है। ये चीजें सच मतलब आपने इम्प्लीमेंट करना चाहिए एज आर्किटेक्ट, कि नहीं ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, ये ऐसा ही होता है, वैसा होता है। आप इमेजिन करो, अगर ऐसे सोसाइटी में जो कोई फ्लैट लेगा वो बिल्डर को कितना दुआएं देगा, बराबर, कि बहुत अच्छे से बनाए बिल्डिंग। और जब वो घर के एंटर करेगा, सोसाइटी में एंट्री करेगा, गेट से अंदर आएगा, वो हमेशा उसको क्या देगा? अच्छा ब्लेसिंग ही देगा, गुड वाइब्स ही देगा। और फिर वो नेचुरली वो गुड वाइब्स किसको जाएगी? उसके कर्ता को जाएगी ना, मतलब 50% आप भी उसके हकदार हो ना। यस, तो ये थॉट आपको रखना चाहिए कि मेरे वजह से इतने सारी जनता, इतने सारे लोग सुखी होने वाले हैं, तो मेरे को डिजाइन कितने अच्छे से करनी चाहिए, कितना सोच के करना चाहिए, जस्ट लाइक माय ओन बंगलो। अब जब ये थॉट आपके मन में आएगा ना कि मेरा घर है, मेरे बिल्डिंग है, तो आप वो जो हिसाब से आप करोगे वो हिसाब से आपको उसको भी करना है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस होल पिक्चर। तभी आप सक्सेसफुल आर्किटेक्ट बन सकते हो, बराबर। सो ऑल द बेस्ट, वेरी वेल डन। एंड इफ आई थोड़ा सा अगर आपको हर्ट हुआ तो आई एम वेरी मच सॉरी, ऑल 4 गर्ल्स। No, sir, absolutely not. We took it as positive feedback only. Absolutely not. Thank you so much. Great. Thanks a lot, sir, for those feedback and like literally turning the presentation session into a completely full-fledged green building session. Can you all have a huge hands raise here for Vivek, sir? Everyone. And for all the 4 girls who presented, as also for their mentor who helped them to build this session, Komal Amle, as also Pranav Khabia, sir, for joining us and for putting forth his views as well. Thanks a lot, everyone.
hoping to see that we are concluding the session on green building. But for you all, this is the start of implementing the green building concepts in our design, for all the civil engineers out there, in making sure that our execution makes a lot of the same concept. On this note, we'll conclude our today's session. Thanks a lot for joining. Take care and best of luck.